नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 के यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वाले चैप्टर के श्लोक 6 में आ गए हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतनम् ईश्वरोऽपि सान् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठ्या संभवमयि आत्मा मयाया. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. तो ईश्वर बोल रहे हैं कि उनका जो स्थिति है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एनर्जी वैसे भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सोल कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, लेकिन वो फिर भी अलग अलग टाइम अलग अलग मिलेनियम में वो अपने ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हैं. The Lord has spoken about the peculiarity of his birth. Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours ago. If someone is asked what he had exactly at the same time one day earlier, it would be very difficult for a common man to answer immediately. थोड़ा सोचना पड़ेगा, right? If somebody asks कि कल 12 बजे क्या कर रहे थे, तो अचानक से याद नहीं आएगा, लेकिन ईश्वर को आ जाएगा. He would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before. And yet men often dare to claim to be God or Krishna. ये सब होने के बावजूद भी खुद को भगवान क्लेम करना चाहते हैं. भगवान बनना तो हर कोई चाहता है, बनने की इच्छा रखना अलग है और एक्चुअल में बन जाना अलग है. One should not be misled by such meaningless claims. Then again, the Lord explains his Prakriti or his form. Prakriti means nature as well as Swarupa or one's own form. The Lord says that he appears in his own body. He does not change his body as the common living entity changes from one body to another. The conditioned soul may have one kind of body in the present birth, but he has a different body in the next birth. अलग अलग बर्थ्स में कभी वो इंसान के भी रूप में आ सकते हैं, किसी और लिविंग फॉर्म के रूप में भी आ सकते हैं, बट ईश्वर का वो नहीं होता है. Okay, in the material world, the living entity has no fixed body but transmigrates from one body to another. The Lord, however, does not do so. Whenever he appears, he does so in the same original body by his internal potency. In other words, Krishna appears in this material world in his original eternal form with two hands holding a flute. उनका एक ही फॉर्म है जो वो फ्लूट पकड़ के खड़े रहते हैं, वही रूप में वो बार बार आते हैं. He appears exactly in his eternal body, uncontaminated by his material world. Although he appears in the same transcendental body and is Lord of the universe, it still appears that he takes his birth like an ordinary living entity. वो एक ordinary मतलब वो इतने ही down to earth बोलते हैं या फिर अहंकार से एकदम विच्युत, एकदम अलग, इतना ही simple form में रहते हैं ना, ताकि हर कोई उनको पा सके. उस form में वो हमेशा प्रकट होते हैं. And although his body does not deteriorate like a material body, it still appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from boyhood to youth. But astonishingly enough, he never ages beyond youth. At the same time of the battle of Kurukshetra, he had many grandchildren at home, or in other words, he had sufficiently aged by material calculations. Still, he looked like a young man, 20 or 25 years old. He never see a picture of Krishna in an old age because he never grows old like us, although he is the oldest person in the whole creation, past, present and future. Neither his body nor his intelligence ever deteriorates or changes. Therefore, it is clear that in spite of his being in the material world, he is the same unborn eternal form of bliss and knowledge, changeless in his transcendental body and intelligence. Factually, his appearance and disappearance are like the sun's rising, moving before us and then disappearing from our eyesight. तो वो कभी भी ओल्ड नहीं होते, वो हमेशा यंग रहते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर फॉर्म में. ही इज़ द सेम अनबॉर्न इटर्नल फॉर्म ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज. वो हमेशा ही ब्लिस में रहते हैं, हमेशा ही इटर्नली अवेलेबल होते हैं.
सभी के लिए वो रहते हैं, वो चेंजलेस है, कभी वो बदल नहीं जाते। हिज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस आर लाइक सन्स राइजिंग मूविंग बिफोर अस, जैसे कि सूर्य जैसे हमारे सामने से चला जाता है एंड फिर नेक्स्ट नया दिन आता है, वैसे ही वो भी हमेशा ही है हमारे साथ। When the sun is in out of our sight, we think that the sun is set, but the sun is still there, है ना? Actually the sun is always in its fixed position, but owing to our defective insufficient senses, we calculate the appearance and disappearance of the sun in the sky. And because Lord Krishna's appearance and disappearance are completely different from that of any ordinary common living entity, it is evident that he is eternal, blissful knowledge by his internal potency, and he is never contaminated by material nature. वो कभी भी किसी भी मटेरियल चीज़ों से कंटामिनेट नहीं होते हैं। The Vedas also confirm that the Supreme Personality of Godhead is unborn, yet he still appears to take his birth in multi-manifestations. The Vedic supplementary literatures also confirm that even though the Lord appears to be taking his birth, he is still without change of body. In the Bhagavatam, he appears before his mother as Narayana with 4 hands and the decorations of the 6 kinds of full opulences. His appearance in his original eternal form is his causeless mercy bestowed upon the living entities so that they can concentrate on the Supreme Lord as he is and not on the mental concoctions or imaginations which the impersonalist wrongly thinks the Lord forms to be. The word Maya or Atma Maya refers to the Lord's causeless mercy according to the Vishwakosa dictionary. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कृष्ण भगवान का वो अपने माता के सामने नारायण के रूप में आए थे, उनके ओरिजिनल इटर्नल फॉर्म में वो बार बार प्रकट होते हैं। मतलब उनका यहीं पे मुझे किसी ने बताया था, वो भी भागवत गीता के बारे में चर्चा करती है कि ईश्वर का जो मूर्ति है या जिस फॉर्म में हम पूजा करते हैं वही उनका ओरिजिनल फॉर्म है। ये 2 हफ्ते पहले उन्होंने बोला था। तो मैंने बोला था कण कण में तो भगवान है, तो हर किसी चीज़ में ही आप भगवान को पा सकते हो। तो उन्होंने बोला था नहीं, विग्रह अगर है तो वही उनका रूप है। तो यहाँ पे वही लिखा है, और मुझे अंदर से फील होता है कि ठीक है वही रूप है, बट हर एक चीज़ के अंदर ही तो भगवान का वास है ना, हर एक अंश में ही भगवान है। सो मुझे उस तरीके से समझने में ईजी होता है, पर ठीक है। द लॉर्ड इज कॉन्शियस ऑफ ऑल हिज प्रीवियस अपीयरेंसेस एंड डिसअपीयरेंसेस, बट अ कॉमन लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स एवरीथिंग अबाउट हिज पास्ट बॉडी व्हेन इट गोज टू अनदर बॉडी। ही इज़ द लॉर्ड, मतलब यही बोला जा रहा है कि एक काया जैसे हमारा बदल जाता है, एक पेरिश हो जाता है, तो ईश्वर के साथ में वो रूप बदलता नहीं है, वो बार बार आते हैं तो उनके ओरिजिनल उसी रूप में आते हैं। He is the Lord of all living entities because he performs wonderful and superhuman activities while he is on this earth. Therefore, the Lord is always the same absolute truth and is without differentiation between his form and self or between his quality and body. A question may now be raised as to why the Lord appears and disappears in the world. This is explained in the next verse. तो अगले वर्स में हम जानेंगे कि क्यों वो आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। तो वो चीज़ हम अगले श्लोक में यानी कि श्लोक नंबर 6 में जानेंगे। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि वो बार बार आते हैं तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही आते हैं, चले जाते हैं तो फिर चले जाते हैं। तो उनके हाथ में फ्लूट रहता है, कुछ चीज़ें रहती है जो अभी मुझे नहीं पता कि कलयुग में वो कभी आए अगर तो फिर कैसे आएंगे या फिर आए हैं। लेकिन ये चीज़ बोल सकते हैं कि वो जैसे ह्यूमंस का होता है ना कि अपने बॉडी के चेंज होने के साथ साथ वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में या 2-4 दिन पहले के बारे में भी भूल जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा हर एक चीज़ को याद रखते हैं। अगर हमें ये लगे कि हमने ये कर्मा किया, अच्छा कुछ किया, तो ईश्वर भूल तो नहीं जाएंगे हमें फल देने के लिए, नहीं भूलेंगे। और अगर कभी किसी को लगा कि मैंने ऐसा किया, ईश्वर ने बाई चांस इतने सारे लोग हैं तो वो भूल जाएंगे, लेकिन वो नहीं भूलेंगे। उनका सिस्टम ही ऐसा है ना कि ये भी सेम चीज़ का भी एक आलोचना हो रहा था किसी के साथ में, तो मैंने ये चीज़ बोला था कि उन्होंने शायद कोई, क्योंकि वो बड़े साइंटिस्ट जैसे है, तो कोई सिस्टम बना के रखा होगा, कोई कंप्यूटर जैसा, जहाँ पे वो ऑटोमेटिक या ऑटो प्रोग्राम हो जाता है। कोई भी कोई कर्मा करता है तो वो रिटर्न वहीं पे ऑटोमेटिकली हो जाता है, वहीं से वो चेक कर लेते होंगे।
सो मुझे फिर उन्होंने बताया कि नहीं, उनका वैसा ही सिस्टम है कि उनको ऐसे ही सब कुछ पता चल जाता है। वैसे बुक में लिखा जैसे भगवद गीता में, तो मेरे साथ किसी का ऐसे डिस्कशन हो रहा था जैसे मैं बोल रही थी, तो जैसे भगवद गीता में लिखा है वो उसी चीज़ को मानती है, उसी चीज़ को बोलती है कि वही सच है। मैं अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को थोड़ा सा सोचती हूँ, ये ईश्वर ने मुझे वैसा बनाया है क्योंकि मुझे अपने हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें समझ में आता है। सो वट एवर इट इज़, जिस किसी फॉर्म में भी आप समझे, इतना ही समझे कि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है जो कि इस यूनिवर्स के क्रिएटर के पास है। वही चीज़ यहाँ पे कवर की गई है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है। यही तक खत्म होता है हमारा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक नंबर 6। अगले वीडियो में हम श्लोक 7 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।